The kids are of which ages? Of all the ages? They are from grade 8th class. So they are well versed in English and all. They may understand English, but it would be fine if you'll speak in I'm sure Hindi. they must be also doing great hard work for their academics and all. You guys. Yes, they are. Ashirwad, so one of the kid is here. If you wanted to have a word with him, I'm he'll just respond. asking just to know about the people. It's not about me conversing with English. I'm just asking that how are you guys going about and how are the kids? I'm sure they will be more adorable to you all. So I'm just knowing that what all is being taught to. That's no So if matter. we talk about the other NGOs which we have, they are NGOs where kids live together. So in those NGOs, they are not very well versed with English. There's some very few kids who'll understand English and will respond in English. Otherwise, the basic language which we use is Hindi, and they are comfortable with Hindi only. It's okay. Okay. The medium of language should be such which makes the children more comfortable and happy. So it's not about learning one language or it's just a matter of, yeah. It's just a matter of communicating. Yeah. So whichever way it is. Yeah, sure. What all have you done means? How much you are? So we conduct passion based classes. We have different passion based classes running in the background between the time frame of 4 to 6. We have dance, painting, theater, sign language. So different course of passions we have taught these kids. God, good. So they are comfortable with theater thing also. Yeah. Yeah, nice. Even So what about taekwondo, karate. this thing vaccine and all? Because the vaccination has been started in so many places in Delhi. Like what all? Have you been vaccinated? Vaccination is done or not? Not sure about it. I'm not sure about it. Have you got vaccine or not? No, not yet. So please ask somebody and get it as soon as possible, because it is just Sure. it's a matter of you know to keep yourself fit and healthy. No, I'm not about going to places, but yes, it's a good, you can say, antibiotic types. So Yeah. Uh, even okay, the Neha. Yeah. Anthony, Sorry, sir. Sorry, yeah, sir. yeah. Okay. Yeah. So Neha is saying the kids will be there in next 2 minutes. Yeah, They'll yeah, all join. Yeah. sure, So sure. we'll start in 2 minutes. Ashirwad wanted to say something. I'm so sorry. How you pronounce your name? I'm sorry if I mispronounced it. Me, Yeah. Sanchia. Sanchia.
Yeah. Sanchya, Ashirwad wanted to say something. Ashirwad, bolo. Yeah. आशीर्वाद, आपने हैंड रेज किया है, आपको कुछ बोलना है? Not sure, maybe he's facing some trouble with the network. Yes, Anshia. So would you like to tell about yourself, what you have done, or what all things you teach? Yeah, sure. I've done my BA with music from Daulat Ram Delhi University. Plus, I've done a degree course from Prag University in vocal and instrumental. That is Hindustani vocal and instrumental. And now I'm pursuing with a keyboard course from Trinity College of London. So I'm learning in this thing in an academy. But due to lockdown, there are no classes, so I'm practicing well to make at home only, at my own place. Plus, I am getting more opportunities online only. Like this is the opportunity, and performing in my yoga group, my yoga members on Zoom classes, or means we do grab opportunities wherever we get. So it's I think online sessions have given me more opportunities than Nowadays, so only this is possible. Yeah. So it is more. I feel it has been more approachable and all. So it's a good experience for me. That's great. That's great. So I guess kids are joining. Hi, Musamad. How are you? कैसे हो आप लोग? Hello, dear children. Hello, Musmat. How are you? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. एक minute. Excuse me. Yeah, sure. अच्छा, सब जने अपना कैमरा ऑन करें. एंड आज हमारी 15 मिनट्स में क्लास डिवाइडेड है. फर्स्ट क्लास है आपकी सिंगिंग की, जो मैम आपको सिंगिंग के बारे में बेसिक बताएंगी, सांशिया मैम. एंड सेकेंड क्लास में आपको शिवानी मैम बेसिक एटिकेट्स के बारे में बताएंगी. ठीक है, तो प्लीज अपने कैमरा सब जने ऑन कर लो. सो सांशिया, देयर आर किड्स from one screen जो बहुत सारे एक साथ बैठे हैं. from Rakesh Chauhan screen you can see. So let's start. Yeah, I guess we can start. सब ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, अपने कैमरा सब जने ऑन कर लो और सेट कर लो. सांशिया मैम आपको सिंगिंग के बारे में बताएंगी. ओके, yes ma'am. I'll just mute everyone for a second. Yeah. Now I guess you can unmute yourself. Okay. Singing is very important. Like for singing, it is very important to know the swaras first. Like if we know the 7 notes, then only we can sing. It's just like alphabets, of like making words. So for singing, like we have practice of sa, that is called riyaz. Then we should know which note is more, means we should know how to practice the notes, vocal and instrumental. So to sing, for singing, we should know how the note should be, कि हमें notes को कैसे लगाना है, सुरों को कैसे लगाना है. Because if we will not put the notes properly, अगर हम सुर ठीक से नहीं लगाएंगे तो हम गा नहीं पाएंगे. तो पहले हम सुर सीखते हैं, सा लगाना सीखते हैं, फिर हम सरगम सीखते हैं. सरगम में आपको 2 महीने लगेंगे ताकि आप कुछ गा सको. फिर हम राग सीखते हैं, फिर राग में कौन कौन से स्वर लगने हैं. तो ऐसे सिंगिंग आती है. एकदम से बॉलीवुड गाना कोई नहीं गा सकता या बजा सकता. वैसे अगर हम इंस्ट्रूमेंटल सीखेंगे तो हम पहले नोट्स सीखेंगे. We learn the notes, the keys, what to play and what not to play. Then we learn the chords. अगर हमें लेफ्ट हैंड सीखना है तो हमें पता होना चाहिए कौन सा कॉर्ड है, कौन सा नोट है, कितने नोट्स है. सिंगिंग में वेस्टर्न में कितने नोट्स हैं और इंडियन में कितने नोट्स हैं, हमें ये सब पता होना चाहिए. सो दिस इज अ बेसिक पार्ट. और जो छोटा बच्चा होता है वो तो हारमोनियम बजाते बजाते ही सीखता है.
क्योंकि हारमोनियम तो कोई भी बजा सकता है, anybody can afford to learn play harmonium, sing with playing of harmonium. तो पहले हमें सिंगिंग के लिए पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कौन से नोट्स हमें यूज करने हैं, सरगम आनी चाहिए। सबसे पहले हमें सरगम का पता होना चाहिए, कब कौन सी सरगम लगानी है, कितने स्वर है, कौन से स्वर है, कौन से राग में कौन सा स्वर लगेगा, कब लगना है ये स्वर। तो हमें ये सब करके वी कैन गो ऑन टू लर्न सिंगिंग। फिर धीरे धीरे राग सीखेंगे, फिर धीरे धीरे भजन सीखेंगे, फिर कुछ इंडियन स्टाइल का म्यूजिक सीखेंगे, एंड देन देयर आफ्टर वी कैन लर्न बॉलीवुड म्यूजिक। एकदम से कोई भी बॉलीवुड सिंगिंग नहीं कर सकता। यू कैन सिंग विद लिसनिंग टू म्यूजिक, भजन सुनो, साथ साथ गाना, यू कैन सिंग, बट एकदम से अगर आपको हम कह दें कि प्रोफेशनली गाओ, है ना, म्यूजिक को प्रोफेशनली गाओ, तो उसके लिए आपको पहले सुर सीखने पड़ेंगे। जैसे ABCD है, फिर हम वर्ड सीखते हैं, फिर हम सेंटेंसेस सीखते हैं, है ना। तो सिमिलरली हमें पहले क्या पता होना चाहिए, कितने नोट्स हैं, सरगम कौन कौन सी है, ये की कौन सा नोट है, इसके ऊपर क्या बनेगा, ये कौन सा की है, ये कौन सी की है, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए। फिर हम धीरे राग सीखते हैं, भजन सुनते हैं, फिर हम बॉलीवुड गाते हैं या बजाते हैं। सो दिस इज हाउ सिंगिंग कैन बी परस्यूड। ठीक है, तो मैं आपको आज मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है, तो आज आप सिर्फ बॉलीवुड गानों को एंजॉय करिएगा, सुनिएगा, फिर धीरे धीरे आप सीखिएगा। ठीक है, आज हम कुछ सीखेंगे नहीं, सिर्फ गाने सुनेंगे, मैं गाने बजाऊंगी और आप एंजॉय करें। ठीक है मैम? ठीक है मनीषा मैम? Yes, Ansha. Here goes the first song.
Yeah. Can you show the kids also? Can you show the piano how you are doing it? Okay. Yeah. Okay, like एक second adjustment करना पड़ेगा मुझे. Sure. I mean, I guess it would be While I'm great. playing. अच्छा प्ले करते हुए एक सेकंड तक नहीं, एक सेकंड. बच्चों प्लीज आप लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लो जिससे हमें दिखे कि हाँ आप लोग देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. प्ले करते हुए तो नहीं आ रहा. एक सेकंड कैसे सेट करेंगे. प्ले करते हुए तो कोई खड़ा होना चाहिए. फिर आज के लिए सॉरी. No problem. Whichever. नहीं मैं आज के बाद चलो कंटिन्यू. Yeah.
sorry, Sancha, for you stopping you in between. I'm so sorry for stopping you in between. But the thing is, there's one more mentor with us, and she'll take the another 15 minutes of the kids. Though we'll try to provide you 1 hour session with our other kids, which between 4 to 6. So it would be great if Yeah, you'll perform. Can it be on Saturdays or not? Can it be on every Saturday, 4 to 6 or 4 to 5? Sure, Sancha, thank you so much for coming and teaching these kids. We'll try to provide you 1 hour session for these kids from next onwards. Yeah. Yeah, sure. Thank you. Thank you, my pleasure. Okay, children, bye. God bless you. Take care. Okay, dear. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye, Thank you Manisha. so much. Thank you, Sancha. Thank you. Yeah, sure. Okay, bye. Bye, bye. बच्चों, अब हमारे साथ एक टीचर हैं शिवानी, जो आपको बेसिक एटिकेट्स के बारे में बताएंगी. So over to you, Shivani. I guess there's only 10-12 minutes left, though you can take your session if it's fine. Yeah, no problem. Hello, everyone. I guess there are Sancha, what's the name? Sancha, Manoj, Kori, Musammat. Myself, Shivani. I'm from Faridabad. Okay, so आज का हमारा टॉपिक क्या था? बेसिक एटिकेट्स. बेसिक एटिकेट्स का क्या मतलब होता है? आप में से कोई मुझे बता सकता है? बच्चों आप लोग अनम्यूट करके प्लीज बोलो, आंसर करो, किसको पता हाँ जी, है? आप में से जिसको पता है, जितना भी पता है आप बताओ. मैंने नहीं म्यूट करा, आपने शायद होस्ट. Everyone is on mute. I'm sorry. तो मैं सबको अलाउ कर दूं if ये कॉन्वर्सेशन रहने वाली है 2 वे, है ना? मैम, थैंक यू मैम. सब अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बोलेंगे, सब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना, ठीक है? शिवानी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ टू. I've allowed everyone to unmute themselves. अभी आप लोग ट्राई करिए प्लीज. Yeah, now it's okay. So आप में से बेसिक एटिकेट्स का मतलब किसको पता है? मैम बेसिक हाँ जी बोलो. मुस्कान बोलो. किसका? एक बार दोबारा बोल लीजिए. बेसिक एटिकेट्स. मैम इसका किसका? मतलब बेसिक एटिकेट्स. अच्छा छोड़ो, आप में से मैनर्स किसे कहते हैं? मैनर्स हम कहते हैं ना, हमें मैनर्स होनी चाहिए. बेसिक मैनर्स कहीं भी जाने के लिए, कुछ करने के लिए. मैनर्स का मतलब क्या होता है? मैम जैसे कि नियम. अच्छे स्वभाव. अच्छा, हाँ. किसने बोला है? जो मैम बोलते हैं उसका मैम वो बात करना है. मैम जो मैम बोले उनका रिस्पेक्ट करना. हाँ, वेरी गुड. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेसिक एटिकेट्स इंग्लिश वर्ड है इसका. इसका मतलब क्या होता है कि हमें कैसे, मतलब कहते हैं ना मैनर्स. इसका अगर आपको एटिकेट्स वर्ड नहीं समझ में आता तो इंग्लिश मीनिंग होता है मैनर्स तो पता है हमें क्या मैनर्स होने चाहिए. हमें बड़ों से अच्छे से बात करनी चाहिए, है ना? यस मैम. उनको ऐसे तू करके नहीं बोलना चाहिए. वी शुड मैम रिस्पेक्ट. बोल रहे उनका आदर मानना चाहिए. मैम उनका हाँ जी, आदर करना चाहिए. हाँ, उनका मैम आदर उनका- करना चाहिए. आदर का मतलब क्या होता है? आदर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिस्पेक्ट आदर करनी को? चाहिए. हाँ, क्या कहते हैं? रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट. हाँ, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हम रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? हम कैसे करते हैं बड़ों का आदर?
मैम हमें दूर नहीं दिखाना चाहिए। मैम हमें उनके मैम साथ उन्हें बदतमीजी नहीं करनी चाहिए अच्छे से बोलना चाहिए। और हमें कर उनकी हेल्प करनी अच्छा, चाहिए। रुको 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 आप नहीं मैं ना देना चाहिए। बच्चों एक सेकंड रुको, मैं सबको मैं म्यूट कर दे रही हूँ। एक एक हैंड रेज करेंगे, मैं उनको अनम्यूट करूंगी, तब आप बोलना, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अभी कोई बताओ कौन बोलने वाला है, फिर उसको अनम्यूट करते हैं हम। हाँ जी, अभी आप किसको बताओ बताना मुस्कान। है? मुस्कान बताएंगी। मैम हमें बड़ों की रिस्पेक्ट इसलिए करनी चाहिए, वो उनसे हमें सीधा बोलना चाहिए। कैसे करते हो आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट? आप कैसे करते हो अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की? कैसे करते हो रिस्पेक्ट? अनम्यूट करो मुस्कान, बताओ। मैम उन्हें हमें मतलब हम उनसे उल्टा नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को, और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका जवाब नहीं देना चाहिए। और शिवानी अभी हाँ आप जी, हाँ जी। हम कैसे करते हैं, जैसे हमारा जैसे कोई टीचर है, मैं बताती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है ना, 5 मिनट्स है। हम पॉइंट्स करेंगे फिंगर्स पे, ठीक है, काउंट करेंगे। नंबर 1, हमें क्या करना चाहिए हमेशा, मीन्स रिस्पेक्ट हम कैसे करते हैं, उनको ग्रीट कैसे करते हैं हम? सबसे पहले हमें कोई सुबह मिलता है, हम उनको कहते हैं नमस्ते कहते हैं, या गुड मॉर्निंग कहते हैं, हाय कहते हैं, हेलो कहते हैं ना, कहते हैं ना? बच्चों बताओ आप लोग। हाँ बोल, हम शो है ना? फिर दूसरा, कुछ घरों में या कुछ लोगों में हम पैर छूते हैं बड़ों के, है ना? करते हैं ना? ठीक है। अगर आपको मतलब अगर आपको मैं हाँ या ना पूछ रही हूँ ना, आप गर्दन हिला दो, सिंपल। अनम्यूट का वो मत करो, ठीक है? उसके बाद और क्या करते हैं हम उनकी मतलब कोशिश करते हैं, मुझे पता है सारी तो कोई नहीं मानता, बट हम कोशिश करते हैं, है ना? कुछ हद तक हम कोशिश करते हैं कि हम बड़ों की सारी बात माने, ठीक है? और बेसिक एटिकेट्स में हमारा ये आता है। और क्या आता है बेसिक एटिकेट्स में? हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। कोई आपको कहता है कि हाँ भाई जाकर इसको मार कर आओ, अच्छी बात है मारना किसी को, लड़ना, इज इट अ गुड हैबिट? नहीं ना। तो हमें किसी से लड़ना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरा क्या था, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनसे, और हमें क्या, सॉफ्ट स्पोकन, काइंड होना चाहिए हमें। काइंड का मतलब क्या होता है? प्यार से बोलना चाहिए सबसे, है ना? गुस्से से कोई अगर आपसे, सोचो मैं गुस्से से बात करूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। अगर मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है? मतलब आपको लग रहा है ना कि हाँ फ्रेंडली है कोई, या कोई मेरे से अच्छे से बात कर रहा है, यू विल फील गुड, राइट? सिमिलर वैसे ही अगर आप भी किसी से प्यार से बात करोगे, उससे भी अच्छा लगेगा, है ना? तो फिर आप और वो जो भी होगा, आप उसको क्या करेंगे, आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है उससे अच्छे से, है ना? जान पहचान हो सकती है, ऐसे ही तो फ्रेंड्स बनते हैं। फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? आप किसी से मिलते हो, उससे प्यार से बात करते हो, पूछते हो हाउ आर यू, कैसे हो आप, फिर आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है धीरे धीरे, है ना? ऐसे ही होता है। और क्या होता है बेसिक एटिकेट्स में हमारा? और क्या आएगा बताओ? हमें लड़ना नहीं चाहिए, पहला क्या किया था, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थर्ड क्या था? वी शुड बी काइंड एंड पोलाइट, काइंड और पोलाइट होना चाहिए हमें। फोर्थ क्या है? हम हेल्पफुल होना चाहिए, ठीक है? हेल्पफुल का मतलब क्या होता है? हेल्पफुल का मतलब मैं ही बताती हूँ, अभी आप लोग म्यूट हो ना, कोई बात नहीं। हेल्पफुल का मतलब क्या होता है? हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, है ना? अगर सोचो मेरे को कोई चीज आती है, आपको नहीं आती, तो मैं वो आपको बता दूं, तो ये हेल्प हुई। अगर मेरे पास 2 पेन्स हैं, आपके पास 1 पेन है, मतलब आपके पास पेन नहीं है, सो हाउ कैन आई हेल्प? मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? मैं आपको अपना एक फ्री जो एक्स्ट्रा पेन है, मैं वो आपको दे सकती हूँ, है ना? कोई किसी प्रॉब्लम में है, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं,
कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं हम उसकी हेल्प? फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कभी रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, होता है ना, लोग गिर जाते हैं, कभी कोई स्कूटी से गिर जाता है, साइकिल से गिर जाता है, कोई हिट कर देती है कार, तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं किसी की? हम उसको उठा सकते हैं, हाँ भाई उसके व्हीकल को खड़ा कर दो, उसकी जो भी कार तो नहीं है, ठीक, स्कूटी है या साइकिल है, हम उसे उठा सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं आपको लगी है, चोट लगी है आपको, है ना? और क्या कर सकते हैं हम? उसके लिए हम एम्बुलेंस बुला सकते हैं, डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं उसे, है ना? फिर वो ठीक हो जाएगा, ठीक इन द सेंस कि जो भी डॉक्टर करेगा, दवाई लगाएगा या जो भी बैंडेज कुछ भी करेगा, ऐसे हम हेल्प कर सकते हैं ना किसी की। अगर आप सोचो आप किसी प्रॉब्लम में हो और आपकी कोई हेल्प करे, आपको अच्छा लगेगा ना, अच्छा इन द सेंस यू विल बी लाइक हाँ थैंक यू। और अगर आपकी कोई हेल्प करे तो आपको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए उसे, है ना? अपने वीडियो ऑन ऑफ कर ली, कोई बात नहीं, चलो। तो हम मतलब छोटी छोटी बातों से हम दिखा सकते हैं, जैसे अगर आप किसी को मिल रहे हो तो आप उसको ग्रीट करो, हेलो, हाय, हाउ आर यू, नमस्ते, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में या उसमें बोलते हो वो करो, उनको अच्छा लगेगा। बेसिक एटिकेट्स का मतलब क्या होता है कि हम सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर इन द सेंस एक साथ हम सबको रहना है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार से बोलना चाहिए, ये सब सिखाती है हमें बेसिक एटिकेट्स। इससे क्या होता है, हम जो है हमारी खुद की भी वो होती है, मीन्स हम खुद भी तो अच्छे बनते हैं, अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो हम भी तो अच्छे बनेंगे ना, है ना? तो उससे क्या होगा, हमारी खुद की भी डेवलपमेंट है इसमें। डेवलपमेंट मीन्स हम खुद भी तो मतलब अगर हम अच्छे बनेंगे मतलब खुद भी तो हम थोड़ा ग्रो करेंगे, अच्छे बनेंगे। तो आपको 5 पॉइंट समझ में आए बेसिक एटिकेट्स के? फर्स्ट क्या था? वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। एल्डर्स का मतलब क्या होता है? बड़े, हमारे बड़े। यंगर्स की भी, यंगर मीन्स जो हमारे छोटे, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे भी प्यार से बोलना चाहिए, ये नहीं कि छोटा है कि उसको मार दो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है? सो फर्स्ट क्या था? वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड बी पोलाइट एंड काइंड। थर्ड, वी शुड बी हेल्पफुल, हेल्प करनी चाहिए हमें सबकी। फोर्थ क्या था? मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेले बोल रही हूँ। नहीं नहीं शिवानी, थोड़ा सा टाइम कम है ना, और इसी चक्कर में कि वो थोड़ी सी नॉलेज, नहीं तो अगर टाइम होता तो बहुत अच्छे से आपस में बातचीत हो पाती, वो भी रिप्लाई करते, आप भी उनसे पूछ पाते, इसीलिए अभी आपको मौका दिया जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स होते हैं, हमें हमेशा याद रखने चाहिए, मतलब हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हाँ हमारी कुछ कॉमन या बेसिक चीजें होती हैं, चाहे आपको कभी गुस्सा आए, कोई भी सिचुएशन हो, हमें अपनी बेसिक एटिकेट्स जो हमारे मैनर्स हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप किसी को अब्यूज कर रहे हो, वी शुड नॉट अब्यूज, हमें गाली नहीं देनी चाहिए किसी को, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपका खुद का भी तो ग्रोथ होगी ना, कि आप किसी से गंदे तरीके से नहीं बोल रहे, है ना? तो और आप लोगों को ये सेशन खत्म करना है अभी, मीन्स है टाइम अभी, या मैं कंटिन्यू करूं? नहीं हमारे पास ना 11:30 तक का ही टाइम था, शायद बच्चों ने थोड़ा सा लेट कर दिया। बच्चों, आपको पता है अगर आप लोग टाइम से आते तो आप कितना और सीख पाते, आपके लेट ज्वाइन करने की वजह से कितनी चीजें छूट गई है, और क्लास जैसे होनी चाहिए थी वैसे भी नहीं हो पाई है। तो आप मैम मैं सबसे टाइम से आया था। नो मैम, हमें ना कंफ्यूज हो गया था, हमारी आईडी फिर वैसे हो गई थी ना चेंज। ओके, कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे 10:50 का तो फिर प्लीज आप टाइम से ज्वाइन करना, ठीक है? ओके मैम। सॉरी, सॉरी दोनों मेंटर के लिए कि आप लोगों को भी बहुत कम कम टाइम मिला, और आप जो जैसे बच्चों को बताना चाहते थे वैसे नहीं बता पाए होंगे अभी। नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो बच्चों, आपको कैसी लगी मैम क्लास, आप नेक्स्ट टाइम पे बताओगे? अच्छा कर लेंगे। मैम वेरी ब्यूटीफुल मैम, बहुत अच्छी लगी। मैम बहुत अच्छी लगी। अच्छा, सिंगिंग वाली मैम और ये मजा भी आया। मजा भी आया, दोनों क्लास में आया ना आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम मैं सिंगिंग में थैंक यू, थी तो आप नहीं। लोग थैंक यू बोलो मैम को, दोनों मैम को थैंक यू बोलो आप लोग। थैंक यू मैम। मैम।
Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बाय मैम, Thank you. हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम दूसरी Bye, क्लास ma'am. ओके मैम। Bye, Have a nice ma'am. day. Bye, ma'am. बाय मैम। Have a nice day. Have a nice day, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Have a nice day, ma'am. Good day, ma'am. बच्चों लीव कर सकते हो अब आप क्लास। Okay, ma'am. ओके मैम। थैंक यू शिवानी, थैंक यू सांशिया। विल ट्राई आप लोगों को और टाइम मिल पाए नेक्स्ट ऑनवर्ड्स बच्चों के साथ, सो दैट आप पूरा कंप्लीट करा पाए। एंड आई एम सो सॉरी फॉर इट, जो भी मेस क्रिएट हुआ। No problem. Shall I leave? Yeah, thank you. Okay. Bye. Have a nice day. Bye, have a nice day to you too.